Hello guys, welcome to your channel Concept Creator. Here I am going through a biologic NCERT with every line of the NCERT. Here I will give you the meaning of every hidden line, the hidden meaning of every line of the NCERT, and go through each and every portion of NCERT. So stay connected with me to clear all doubts with lines, meaning, and what is it? First we should know. It is a educational institution और we can say एक संस्था है जो हमारी बोर्ड्स को बुक्स प्रोवाइड करने का काम करती है, या इस कहें कि NCERT एक बेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम का. So we should know what is an NCERT. Let's start with the content. Here we should know that what is the content of the book. So start with the content. We have a 5 unit in the biology class 12th NCERT. Here are 5 unit. The name I go through with each. पहला है रिप्रोडक्शन, सेकेंड है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, थर्ड है बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर, एंड फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ वन इज इकोलॉजी. Total chapters in the 12th NCERT is chapter 16. Okay, we go through with each and every chapter and with each and every line. So if you have any doubt with this, please clear with me. Okay, I give you the meaning of every line, every word of the NCERT. So start with the introduction of first unit. The first unit is reproduction. Here the 4 chapters are included in this unit. पहला है reproduction in organism, दूसरा है reproduction in flowering plant, तीसरा है human reproduction, and fourth है reproduction health. The reproductive health. First we go through the every portion of NCERT. I will tell you that first started with the introduction given in this unit portion. तो पहले हम ये portion को भी complete करेंगे. Okay, I will read first, then I will give you the meaning. Biology in essence is the story of life on earth. एक्चुअली वी शुड नो फर्स्ट कि बायोलॉजी है क्या. बायोलॉजी है जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे, उनकी स्टडी करना, उनके बारे में एनालाइज करना कि उनका बिहेवियर क्या है, उनके अंदर क्या कैरेक्टर्स है, क्या वो अडेप्ट करते हैं, क्या खाते हैं, क्या फंक्शनिंग चलती है, सब all about the study of life is biology. So first line of the introduction is given that what the biology give you, what essence it gives, the sense or story of life in earth. It tells you that how the life is created on earth and how it will proceed, how the life is proceeding, how it created. It give you all about it. It is just a story. Okay, then the second line we are going through, why individual organisms die without fail. Without fail word here signifies that without, with the living, its progeny. अगर कोई organism fail means, if they write here fail, it means it will die without leaving its progeny. Its progeny will not leave. उसकी आगे की जनरेशन ही नहीं बढ़ेगी. तो उसके बारे में कोई ऑर्गेनिज्म था. अब हम अपने नॉर्मल लाइफ में अगर बात करते हैं, तो अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी कोई प्रोजेनी ही नहीं हुई, तो हम कैसे कहेंगे कि उस पीढ़ी का है या उस कुल का है, या जो भी वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो हमें कैसे पता चलता है? तो विदाउट फेल मीन्स होता है एक ऑर्गेनिज्म अपनी जगह पे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म को प्लेस करके जाता है, जिसकी वजह से लाइफ
अर्थ पे कंटिन्यू बनी रहती है। लाइफ विल नेवर एवर लिव। ये एक प्रोसेस है जो एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करे। ओके, स्पीशीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर। कोई भी स्पीशीज की बात करें तो काफ़ी सालों तक कोई स्पीशीज रहती है। हम कितनी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हमने 11th में पढ़ी होगी, हमने पढ़ी है कि लाइफ कैसे कंटिन्यू रहती है और कितने मिलियंस। हम डायनासोर्स की बात करते हैं तो डायनासोर्स कितने सालों तक रहे। एक किसी भी जनरेशन को चेंज करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स चेंज हो जाते हैं। एक स्पीशीज इवोल्यूट करती है जो, तो कईयों साल लग जाते हैं तब कोई स्पीशीज चेंज कर पाती है अपने आप को। पर अनलेस बहुत सालों तक रह सकती है कोई भी स्पीशीज, बहुत सालों तक कंटिन्यू भी कर सकती है अनलेस उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, अनलेस थ्रेटेंड बाय अ नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। अनलेस अगर आप उसको नेचुरल मीन्स डायनासोर का अगर हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग कि हाउ द डायनासोर एक्सटेंड, कैसे एक्सटेंड हुए थे डायनासोर के बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं कि मीटर्स आके गिरे थे या फिर पूरी अर्थ पे जितने भी उस टाइम के लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी एकदम ख़त्म हो गए थे, या उनकी कोई फूड हैबिट बताता है, बहुत सारे एडेप्टेशंस भी बताते हैं। तो देयर आर मेनी रीजन बट नॉट अ क्लियर रीजन वी नो हियर कि व्हाट इज़ अ क्लियर रीजन बिहाइंड हाउ व्हाई द डायनासोर विल एक्सटेंड. So it can be a natural means it can be earthquake, it can be a volcanic eruption or many natural calamities that will occur. The region is extinction or you can say species will threaten by these regions. Okay, anthropogenic extinction means the anthro word is related with the human being. When a human being is involved in the extinction of any species, this will give you that we are discussing about the pandemic. Okay, actually it is also a human being is a reason behind it can be said because इंसानों ने इतना ज़्यादा नेचर को एक्सप्लॉइट किया कि उसका आज ये कारण है कि नेचर विल क्लियर ऑन दिस थिंग. ओके, दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ यू कैन से बदला लेने का नेचुरल तरीका. ओके, तो कोरोना वायरस इज सेम लाइक इट इज़ अ बदला ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सप्लोइटेशन. ओके, तो इंसानों ने जो भी निकरामतें की हैं, अब वो ये कोविड जो है वो उसकी सीख है कि वो नेचर को अभी भी अपने आप को अभी भी सुधार ले और नेचर को बचाए. अदरवाइज इट कैन बी मोर सीवियर, मोर हार्मफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन. Okay, the reproduction become a vital process without which species cannot be survive for long. हम इतनी बात हमने की कि भाई जनरेशन बढ़ रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे, पर हम जानते हैं कि प्रोसेस कौन सी है. इट इज़ अ रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिससे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस पे, अपनी जगह पे अपनी प्रोजेनी को छोड़ता है. सो दिस इज़ अ वाइटल प्रोसेस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से स्पीशीज़ कैन नॉट, अगर ये प्रोसेस ना होती तो स्पीशीज़ तो एक स्पीशीज़ कितने साल जिएगी भाई. ओके, तो उसको अपनी जगह पे किसी को छोड़ना पड़ेगा. दिस इज़ अ नेचुरल मेथड. So it is a vital process. Okay, each individual lays its progeny by sexual or sexual. हर ऑर्गेनिज्म, हर इंडिविजुअल अपनी प्रोजेनी को छोड़ के जाता है, चाहे वो ये सेक्शुअल मेथड हो या सेक्शुअल मेथड हो, कोई भी मेथड हो. ओके, we are deeply, we are detailedly dealing with
these two methods in the chapter very clearly. Okay. The variation, the sexual mode of reproduction. The sexual mode of reproduction enables creation of new variant. The variant, what the word variant mean? Word variant is here the variation. क्या अलग पाया जाता है एक पेरेंट और उसकी प्रोजेनी में? हम अपना ह्यूमन बींग्स का देखें तो क्या कोई भी प्रोजेनी एग्जैक्ट कॉपी होती है अपनी पेरेंट की? बिल्कुल नहीं होती. देयर आर मेनी डिफरेंसेस. इट कैन little bit resemble, but it cannot exact copy. So this is the variation. Even not on a facial feature we are talking. हम functioning की बात करें, हम habits की बात करें, सब में बदलाव होता है. It cannot be the same. So this variation is only found in sexual reproduction. So that survival advantage is enhanced. This variation that is created, that is found in sexual reproduction, that will enhance it. It is advantage and enhance. It will enhance some features. It will more better than. Sometimes it is created more better progeny than the parent. Okay, पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे प्रोजेनी में कुछ कैरेक्टर्स बनते हैं. सो ये एक कारण है रिप्रोडक्शन का जिससे सर्वाइवल के अच्छे एडवांटेजेस होते हैं. ओके, दिस यूनिट एग्जामिन्स द जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन एक्सप्लेन्स द डिटेल ऑफ दिस प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स. हियर वी गो थ्रू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. We go through organism, general organisms, then living organisms, then flowering plants, then humans and their health. Okay. So this is just an introduction of this unit. Next video we will discuss about the first chapter of this unit. So if you are like how I make you clear every line of NCERT, so stay connected with us with every video. Thank you. Have a nice day.